بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس اسرائیل میں غزہ میں عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق۔ حماس اور اسرائیل غزہ میں اقتدار عبوری حکومت کو سونپنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں دونوں میں سے کوئی بھی غزہ پر حکومت نہیں کرے گا۔ ایک عبوری حکومت قائم کر کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران فلسطینی اتھارٹی کی حمایت یافتہ فلسطینی فورس اس پٹی پر حکومت کرے گی۔ حماس نے غزہ میں سویلین حکومت اور الفتح یا فلسطینی اتھارٹی کے افراد پر مشتمل فورس کے حق میں غزہ کی حکمرانی چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ جنگ بندی کی شرط سے ثابت ہوتا ہے کہ حماس نے تحریری گارنٹی لینے کی شرط چھوڑ دی ہے اور وہ سلامتی کونسل کے فیصلے پر ایک فریم ورک معاہدے کے طور پر مطمئن ہے۔ اسرائیل نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر حماس نے اپنی طاقت کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی تو وہ لڑائی دوبارہ شروع کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو پر بھی دونوں فریقین میں بات چیت جاری ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد مصر روانہ ہو گیا ہے۔ مصری حکومت نے مذاکرات میں بڑی پیش رفت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق مذاکراتی ٹیم قاہرہ پہنچ چکی ہے، جہاں وہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کرے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفد کی سربراہی بیرونی سیکیورٹی سروس کے سربراہ شین بیٹ کر رہے ہیں، جبکہ دیگر افراد میں اسرائیلی آرمی کے افسران اور اہلکار بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے آج جنگ بندی کے حوالے سے دوحہ میں مذاکرات کاروں سے ملاقات بھی کی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر نے قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کا انعقاد کیا، جس میں مصری امریکی حکام بھی شریک ہیں اور اسرائیلی وفد مذکورہ حکام سے ملاقات کرے گا۔ روئٹرز کو مصری حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے۔ اس سے قبل متفقہ نکات پر دونوں فریقین کو قائل کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ فلسطین کی مزاحمتی گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ثالثوں نے انہیں ابھی تک کسی بھی قسم کی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا۔ مصری ذرائع نے بتایا ہے کہ موجودہ معاہدے کے پہلے 6 ہفتے کے مرحلے کے دوران اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ کے رہائشی علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلاء اور جنگ کے بعد غزہ کی انتظامی طریقہ کار اور بحالی کے معاملات پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی صفاقانہ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی افواج کے جبراً نقل مکانی پر مجبور فلسطینیوں پر حملے شروع کر دیے گئے۔ تل الحوا کے علاقے پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سول ڈیفنس غزہ نے تل الحوا میں اسرائیلی حملوں کی تصدیق کر دی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 38,345 ہو گئی۔ 88,295 افراد زخمی ہیں۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کی تنصیبات اور سکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا غزہ شہر کا مکمل انخلاء کا حکم بڑے پیمانے پر مصائب کا سبب بن رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حکومت نے انخلاء کے احکامات کو شہریوں کے خلاف نفسیاتی جنگ قرار دے دیا۔ دوحہ میں اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ 9 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کی کوششیں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में इसराइली फौज ने नाकामी तस्लीम कर ली। इसराइली वजीर दिफा ने नेतन्याहू को शामिल करके रियासती इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की फौज ने जुमेरात के रोज एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है जिसमें यह एतराफ़ कर लिया गया है कि हमास की तरफ से 7 अक्टूबर का हमला ना रोका जा सकना इसराइली फौज की नाकामी थी। ये बात फौज की तरफ से इस बारे में पहली बाज़ाब्ता तहकीकात के नतीजे में सामने आई है। तहकीकाती रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि इसराइली फौज के 32 बहरी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुई। इस कम्युनिटी के इसराइली बुरी तरह हमास के हमले का निशाना बने थे। इस हमले में सिर्फ इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए थे, जबकि बाकी इसराइली हलाकतें इसके अलावा थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार न थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह बड़ा हमला होगा और ऐसा मंजर नामा बन जाएगा। हत्ता कि दोपहर तक इसराइली फौज के पास कोई वाज़िया तस्वीर ना थी कि हुआ क्या है। मुतलका कम्युनिटी के जो लोग मुकाबला कर रहे थे वो गैर मुनज़्ज़म और गैर मरबूत थे। ताहम तहकीकात में फ़ौज की तरफ से घरों की तरफ गोलाबारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जहां जंगजुओं ने 15 अफराद को यरगमाली बनाया था। जब घरों पर फायरिंग शुरू हुई तो हमला आवरों ने खुद को और यरगमालियों को हलाक कर देने का ऐलान कर दिया। फ़ौज ने यरगमालियों को बचाने के लिए इस जानिब तूफ़ानी रफ्तार से बढ़ने का फैसला किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लबनान की तहरीक हिजबुल्लाह ने ज़हूनी हुकूमत के ठिकानों और इस हुकूमत के तोपखाना बटालियन की कमान पर ड्रोन हमले की खबर दी है। लबनान की इस्लामी मुजाहमत ने जुमेरात के रोज़ मकबूजा फ़लस्तीन में ज़हूनी हुकूमत के ठिकानों को मुतअद्दिद खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसने काबरी के जनूब में 146वीं यूनिट से वाबस्ता आर्टिलरी बटालियन के हेडक्वार्टर पर कई ड्रोन से हमला किया। इस तहरीक के बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन गजा की पट्टी में फ़लस्तीन की पायदार कौम की हमायत और इनकी बहादराना और बावकार मुजाहमत की हमायत में खुदकुश ड्रोन के जरिए सहूनी फौज और अफसरान के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने आज सुबह अलमलाकिया बेस में तकनीकी आलात को मुनासिब हथियारों से निशाना बनाया। सहूनी मीडिया ने भी मगरबी अलजलील के इलाके काबरी में ड्रोन धमाके के नतीजे में एक फौजी की हलाकत और 2 के जख्मी होने की खबर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और इनकी इंतजामिया गजा में इसराइली जंगी जराइम और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। वाशिंगटन डीसी में नेटो सरबराही इजलास के दौरान न्यूज़ वीक के साथ एक इंटरव्यू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीनी शहरियों के वहशियाना कत्ल और हस्पतालों, इमदादी मराकज़ और दीगर जगहों पर इसके हमलों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि अमरीकी इंतजामिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज करती है और इसराइल को सबसे ज़्यादा मदद फराहम करती है। ऐसा करने की वजह जुर्म में 7 दिन है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मोड़ आ चुका है जिसमें दुनिया इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वाला मुल्क करार दे रही है, मगर इसके जवाब में अभी तक कोई पाबंदी लगी और ना ही किसी ने जारहियत रोकने के लिए कोई इकदाम किए। दूसरी जानिब इसराइल ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मुसलसल मुस्तरद करते हुए जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो ने पहली मरतबा चीन को भी एक बड़ा खतरा करार दे दिया। चीन यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद फराहम कर रहा है। नेटो का 75वां सिमट वाशिंगटन डीसी में जारी है। नेटो के आलामिये में कहा गया है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को मदद फराहम कर रहा है। नेटो का दिफाई इत्तेहाद बेजिंग और इनके इंतजामी चैलेंजेस पर अपना मौक़िफ़ सख्त करने जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के यूरोपियन डायरेक्टर ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन रूस की यूक्रेन पर जंग में मदद कर रहा है। अमेरिका और यूरोप अब चीन पर अपना मौक़िफ़ सख्त रखेंगे। डायरेक्टर अमेरिकी महकमे खारजा का मजीद कहना था कि रूस के साथ अमेरिका मुज़ाकरात नहीं करेगा। मुज़ाकरात रूस और यूक्रेन के दरमियान होने चाहिए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने से एक बार फिर इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो अपनी बढ़ती उम्र के हवाले से सख्त तनकीद की जद में हैं, का कहना है कि वो अच्छी सेहत में हैं। उन्होंने 1 घंटे तक जारी रहने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के अज़म का अदा किया। जो बाइडन ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनकी ज़बान लड़खड़ाती रही और ज़बानी गलतियों का शिकार रहे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।